bearing organisms and they have a definite coelenteron. तो coelenteron क्या होता है? उसको हम लोग गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं. ठीक है? Means gastrovascular means digestive as well as circulatory. Plus, we found that these animals are represented by what? These animals are represented by two body forms. Generally, they are represented by two body forms. One form is fixed and one form is motile. So, I am showing you a photograph from Gene Hickman's, which is one of the best books in the whole world with respect to taxonomy. Okay, तो जीन हिकमैन्स का एक शॉट दिखा रहा हूं मैं आपको, so that I can take a snap for you and send you. तो ये आप देख रहे हो एक शॉट, देख रहे हो? So this is your what? This is the polyp stage and this is the medusa stage. Okay, तो जो polyp stage है इसमें आप देखिए ये आपका fixed stage है and उसके बीच में आपका क्या है? This is the coelenteron and ये आपका motile stage है, movable stage है, so that is called the, this is the coelenteron or gastrovascular cavity. Okay, fine. चलिए, so this is the beautiful photograph of these animals. Now we will go ahead and discuss some points about it. What we discussed about them, that they are in these animals जो alternation of generation होता है. Since you have two different body forms, so there is alternation of generation, है कि नहीं? तो ये जो alternation of generation है, यहाँ इसको हम लोग false alternation of generation कहते हैं. क्यों false कहते हैं बताओ? Remember why we call it false alternation of generation? बताइए जाना, why we call it false alternation of generation? So both polyp and medusa stage are diploid. Fantastic. इसका मतलब क्या है कि दोनों जो polyp है and medusa stage है वो diploid है कि नहीं? तो इसीलिए generally हम alternation of generation को true कब कहते हैं? जब एक haploid form एक diploid form के साथ alternate करेगा. Okay? And in your biological classification chapter, आप एक topic है उसमें आप देखोगे, उसमें haplontic cycle, diplontic cycle, haplodiplontic cycle दिया हुआ है. उसमें अलग-अलग stages में haploid and diploid होता है. कितना ज़्यादा कौन सा stage है, accordingly उसका नाम है. So they are called true alternation of generation. But यहाँ जो polyp भी 2n है and जो medusa भी 2n है. इसीलिए हम लोग इसको false alternation कहते हैं. Otherwise, it is also known as metagenesis. Okay. Now, yesterday we were discussing the body wall. है कि नहीं? तो हम लोग इसका body wall discuss कर रहे थे. And इसके body wall में हम लोगों ने क्या discuss किया था? That the body wall is made up of basically two layers. इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? Diploblastic. तो body wall is made up of two layers, comma, joined by a non-cellular mesoglia और उसको हम मेसोहाइल बोलते हैं. ठीक है? तो ये नॉन सेल्यूलर होता है. ओके, तो बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ ए नॉन सेल्यूलर मेसोग्लिया और मेसोहाइल. ठीक है जी. नाउ सो इट इज ओके, सो इट इज रेफर्ड टू एज क्या? Diploblastic condition. Okay, so this is referred to as diploblastic condition. Understood? Now, इसमें the outer layer
is basically made up of क्या? Epithelial cells is basically made up of cuboidal cells. Okay, cuboidal cells known as epitheliomuscular cells. Okay, now they have contractile elements or organelles known as myonemes. प्लीज रिमेंबर, इसमें मसल्स नहीं होता है, इसमें मायोनीम्स होता है. So they have contractile elements or organelles known as myonemes, which help in the contraction and so movement and locomotion. ठीक है, इसीलिए वो लोग मूव एंड लोकोमोट कर सकते हैं. बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल है. इसलिए अभी तक ऑर्गन्स बना नहीं है एंड इसमें कोई भी डेफिनाइट मसल्स नहीं है. तो जब डेफिनाइट मसल्स नहीं है तो हाउ आर दे एबल टू लोकोमोट? तो दे आर एबल टू लोकोमोट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मायोनीम्स. ओके, similarly other cells in the outer layer are, तो और भी अलग अलग सेल्स होंगे. उसमें सबसे पहले होता है निडोसाइट्स और निडोब्लास्ट्स. ओके, निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट्स, और उसको हम लोग कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स. ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ these एनिमल्स. है कि नहीं? तो ये आपका इन एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. नाउ देयर presence or absence क्या resulted in the further division of Coelenterata into Cnidaria. Okay, ब्रैकेट में present and a Cnidaria ब्रैकेट में absent. ओके, तो इसीलिए निडोब्लास्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस आधार पे हमने सिलेंटेराटा को क्या किया, हमने उसको तोड़ा. ओके, इनटू हमने उसको तोड़ा इनटू निडारिया एंड ए निडारिया. ओके, तो इसलिए इफ योर बुक इज टेलिंग फाइलम सिलेंटेराटा, then the next phylum is what? Platyhelminthes. ये याद रखना. अगर आपको सिलेंट्रेटा हम पढ़ाते हैं तो अगला फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस है, बिकॉज निडारिया एंड ए निडारिया उसके क्लासेस है. बट अगर हम निडारिया फाइलम पढ़ाते हैं तो अगला फाइलम होगा ए निडारिया, उसका एक और नाम है टेनोफोरा. ओके, नाउ स्टिंगिंग सेल्स कल मैंने आपको फोटो दिखाया था, है कि नहीं? नाउ these cells, okay, have a stinging apparatus. Okay, these cells have a stinging apparatus which helps in the offense, defense, food capture and anchorage.
ओके, तो ये आपके अलग अलग काम में मदद करता है। तो ये आपका न्यूरोसाइट्स के बारे में। सेकेंड, उसमें न्यूरॉन्स होंगे। तो एक्चुअली न्यूरॉन्स आ गया फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन एनिमलिया। ओके, एनिमलिया। तो एनिमलिया में पहली बार रिपोर्ट हुए न्यूरॉन्स कहाँ? इन निडारिया। ओके, these cells are sensory and they form an ectodermal nerve net. ओके, तो सारे के सारे न्यूरॉन्स आपका एक्टोडर्म के जुड़ के एक्टोडर्मल नर्व नेट बनाते हैं। ठीक है, नाउ इसमें आप लिखेंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट। ओके, न्यूरॉन्स प्रेजेंट बट नर्वस, इसमें नर्वस सिस्टम क्या होगा? एब्सेंट। मीन्स अभी कोई डेफिनाइट सिस्टम इसमें नहीं आया। ओके, थर्ड सेल इसमें आपको मिलेगा ग्लैंड सेल। ओके, दे secrete slime which protects the body from water. ओके, ये लोग जिंदगी भर पानी में रहते हैं तो इसलिए सड़ जाएंगे, ना सड़े इसलिए उनको हम स्लाइम से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? उसके बाद नंबर 4 इज interstitial cells, very important. Interstitial cells, these cells, okay, these cells are totipotent cells of these animals and can generate all other cells of the outer layer. ठीक है, तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है ये आउटर लेयर के सारे सेल्स बना दे। फाइन, सो दीज आर द सेल्स ऑफ योर आउटर लेयर, है कि नहीं? अब हम लोग इनर लेयर बनाएंगे। ओके, नाउ उसके बाद द inner layer is made up of columnar cells known as endothelionutritive cells. Okay, endothelionutritive cells. These cells help in the digestion of food. Okay, these cells help in the digestion of food. Okay, full stop. तो इसमें आपका फूड वैक्यूल होके डाइजेशन ऑफ फूड चलेगा। तापरे other cells of this layer are, तो और कौन कौन से सेल्स इसमें आपको मिलेंगे? नंबर 1 आपका एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होगा, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो दीज आर columnar cells and also have myoneins. Okay, so they are also capable of contraction. Okay, now
contraction in this layer helps in the circulation of fluids inside the coelenteron. है कि नहीं? तो जब आपका ये लेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका फ्लूइड सिलेंट्रॉन के अंदर भी सर्कुलेट करेगा. क्लियर? सो ये आपका एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स है. सेकेंड, इसमें भी न्यूरॉन्स होंगे. न्यूरॉन्स, ओके, दे आर sensory cells and all neurons of the inner layer join to form the, okay, and all neurons, okay, and all neurons in the of the inner layer join to form the cap. Join to form the ectodermal nerve net. तो समझ रहे हो? तो इसमें याद रखेंगे आप कि इसमें इन निडारिया वी हैव 2 नर्व नेट्स. सॉरी, इसमें एक्टो नहीं है, एंडो होगा. ये अंदर वाला है ना, एंडोडर्मल. तो इसीलिए बाहर वाला एक्टोडर्मल नेट्स बनाता है, अंदर वाला एंडोडर्मल नेट बनाता है. क्लियर? उसके बाद थर्ड है ग्लैंड सेल्स. ये क्या करेंगे? These cells secrete digestive enzymes into the coelenteron. Okay, so these cells secrete digestive enzymes into the coelenteron. So, in these animals, digestion is first extracellular and then intracellular. Understood? So, in these animals, digestion is first extracellular and then intracellular. Understood? तो एक्चुअली पॉरीफेरा में क्या था? उनका कैनाल सिस्टम था, इसीलिए कैनाल सिस्टम इज नॉट ऑलवेज क्लोज्ड. तो इसीलिए वो एंजाइम्स को बाहर सीक्रेट नहीं करते थे. इसलिए पॉरीफेरा में जो डाइजेशन है वो इंटरनल था, इंट्रासेल्यूलर. बट यहाँ क्या है? अब माउथ को बंद कर देंगे. तो जैसे ही माउथ को बंद कर देंगे क्या होगा? The food cannot go outside, cannot come inside. तो इसलिए now it is a closed chamber. तो हम एंजाइम्स छोड़ के डाइजेशन कर सकते हैं. क्लियर? उसके बाद जो फोर्थ सेल मिलेंगे, they are called same interstitial cells. Now these cells, okay, so these cells क्या करते हैं? These cells are found in between other cells of the endoderm and, okay, इसलिए उसको इंटरस्टिशियल बोलते हैं, and are totipotent and are totipotent. समझ रहे हो? So these cells are found in between other cells of the endoderm and are totipotent. ठीक है? ये totipotent है. Now, okay, are totipotent. उसके बाद इसका मतलब क्या है? They can produce all cells of the endoderm. समझ रहे हो? तो यहाँ एक ध्यान दीजिए, एक तो गड़बड़ हो गया इधर. क्या गड़बड़ हो गया? अब आप देखिए, एक्टोडर्मल सेल एक्टोडर्म बनाता है, एंडोडर्मल सेल एंडोडर्म बनाता है. इसीलिए आपका रीजनरेशन कब होगा? ओके, सो
in these animals, a segment can regenerate into a whole organism, provided all three layers are present in the segment. समझ रहे हो कि नहीं? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पे ऑलरेडी पीएमटी क्वेश्चंस हैं। तो एक्चुअली क्या है, सपोज आप हाइड्रा को फाड़ दोगे एंड उसका एक्टोडर्म एंडोडर्म अलग कर दोगे, तो क्या होगा? उस केस में रीजेनरेशन नहीं होगा। क्यों? एक्टोडर्म एक्टोडर्म बनाएगा, एंडोडर्म एंडोडर्म बनाएगा, तो इसलिए पूरा एनिमल कभी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपको पूरा का पूरा एनिमल रिजनरेट करना है तो आप क्या करेंगे? आप उसको व्हाट यू विल डू, उसके सेगमेंट में तीनों सेगमेंट होना चाहिए। थोड़ा सा एक्टोडर्म भी होना चाहिए, तो एक्टोडर्मल इंटरस्टिशियल सेल्स मिल गया। थोड़ा सा एंडोडर्म होना चाहिए, तो आपको एंडोडर्मल इंटरस्टिशियल सेल्स मिल गया। एंड मेसोग्लिया भी होना चाहिए। Understand? So please remember, this is a very very important point and is a very very important question also. क्यों? क्योंकि ये आपका माने ऑलरेडी बॉडी वाल ऑफ स्पॉन्जेस एंड बॉडी वाल ऑफ योर निडारिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज यहाँ याद रखेंगे, निडोसाइट्स जो है वो कहाँ मिलता है? सिर्फ एक्टोडर्म में। तो ऑलवेज रिमेम्बर, निडोसाइट इज नेवर फाउंड इन द एंडोडर्म। क्लियर? तो दीज आर सम थिंग्स जिसके लिए आप क्लियर होंगे। ठीक है, तो हमने बॉडी वाल डिस्कस किया ना। उसके बाद इसका जो बॉडी प्लान है, इसका बॉडी प्लान क्या है? बॉडी प्लान इज व्हाट? बोलो। बॉडी प्लान इज, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का माने कौन? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है? द बॉडी हैज ओनली वन ओपनिंग दैट एक्ट्स एज माउथ एज वेल एज समझ रहे हो? तो इसके बॉडी में एक ही ओपनिंग होता है। फाइन, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज द बॉडी प्लान। नाउ उसके बाद इन जानवरों के बारे में हम आपका अलग डाइजेशन डिस्कस करेंगे। नाउ इन केस ऑफ डाइजेशन एंड ऑल, तो उसमें क्या है? ये जो डाइजेशन है, डाइजेशन इसका टोटल नहीं है, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट नहीं है, ये हमने डिस्कस किया। तो इसीलिए इसका डाइजेशन क्या होगा? बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा। तो इसलिए इसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता है, ध्यान देंगे। तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल टॉपिक्स। ओके, जो ऑल द सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे। फाइन, फाइन। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सिलेंड्रॉन, इट इज लाइन्ड विद एंडोडर्म एंड आल्सो कॉल्ड सिलेंड्रॉन। उसके बाद डाइजेशन। जो डाइजेशन है, एक्स डाइजेशन में इसमें लिखेंगे नो डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड है, तो अभी तो ऑर्गन नहीं बना, ऑर्गन सिस्टम कहां से आएगा? So that is why there is no digestive system. है कि नहीं? इसमें कोई भी सिस्टम नहीं होगा। No digestive system. Okay. Digestion is first extracellular and then
इंट्रासेल्यूलर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दे आर यूजुअली कार्निवोरस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, दे आर यूजुअली कार्निवोरस। तो इसके बारे में बोला जाता है हाइड्रा feeds on those things that have glutathione, ब्रैकेट में ए ट्राइपेप्टाइड, है कि नहीं? तो हाइड्रा फीड्स ऑन दोज थिंग्स दैट हैव ग्लूटाथियोन। तो ग्लूटाथियोन एक ट्राइपेप्टाइड है। तो ट्राइपेप्टाइड किस में अमीनो एसिड होता है? तो अमीनो एसिड किस चीज में होता है? प्रोटीन्स। तो इसीलिए दे आर यूजुअली कार्निवोरस का मतलब क्या है? मेन डाइट इज प्रोटीन्स। ओके, कैनॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए अगर आप स्टार्च या सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन दोगे तो उनसे ये हजम नहीं होगा। Understood? So they are usually carnivorous and their main food is proteins. कोई शक? Now, anus is also absent. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसमें इजेक्शन नहीं होता है। अगर होगा तो माउथ से। Now, इसके पहले और भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा? रेस्पिरेशन इज डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है? जिसको लेना है अपना खुद लो। रेस्पिरेशन इज डायरेक्ट थ्रू वाटर। ओके, तो पानी के साथ एक्सचेंज करिए। नो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें कोई सिस्टम नहीं। ओके, उसके बाद इवन एक सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेटरी या सर्कुलेशन occurs in the coelenteron. Okay, and the circulatory fluid क्या है? Is water. तो इसलिए इसमें कोई ब्लड फ्लड नहीं है। अंडरस्टूड? उसके बाद एक्सक्रीशन इज डायरेक्ट। मतलब क्या है? एक्सक्रीशन भी आपका डायरेक्ट है। ओके, एक्सक्रीशन इज डायरेक्ट का माने क्या है? दे रिलीज their wastes directly into water. Okay, so they release their waste directly into water. ठीक है, तो एक्टोडर्म वाला बाहर छोड़ता है, एंडोडर्म वाला सिलेंड्रम में छोड़ेगा। उसके बाद स्केलेटन। ओके, स्केलेटन एब्सेंट लिखेंगे। बेसिकली उनका कोई स्केलेटन डेफिनेटली नहीं होता है, बट स्केलेटल एलिमेंट्स फाउंड, ओके, एक्सटर्नल और इंटरनल इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेराइड्स और एज कंटिन्यूअस मास। तो इसलिए उसमें छोटा छोटा हार्डवा जिनसे हो सकता है, बट कोई डेफिनाइट स्केलेटन एब्सेंट है। ओके, तो डेफिनाइट स्केलेटन इज एब्सेंट। ओके, सो इसलिए इनमें अभी कोई डेफिनाइट स्केलेटन नहीं आया। बट इन कोरल्स दे मे हैव एन एंडोस्केलेटन, ओके, नोन एज कोरलियम। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जो कोरल्स होता है, कोरल्स में अंदर एंडोस्केलेटन हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरलियम। अंडरस्टूड? तो उसके बाद आ जाइए, तो हमारा जो लोकोमोशन जो इसमें लिखा है, तो लोकोमोशन इज ड्यू टू
smooth muscle fibril like structures known as myonemes है in the cells। तो इसमें जो मायोनिम्स होगा उसका मदद से आपका क्या होता है, उसके मदद से आपका हो जाएगा लोकोमोशन। ओके, तो मायोनिम्स विल हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, तो ये आपका लोकोमोशन है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके बारे में कि एक्चुअली जो एपिथेलियो मस्कुलर लेयर है या जो एंडोथेलियो मस्कुलर लेयर है उसमें मायोनिम्स होता है जो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग नर्वस सिस्टम में। तो ये जो चक्कर है हम लोग हर एक में चलाएंगे। हम लोग पहले जनरल फीचर्स डिस्कस करेंगे, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे कर करके। तो इसलिए क्या होगा, उसको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, इट विल बी इजियर टू रिमेम्बर। फाइन, चलिए, तो जो नर्वस सिस्टम है, okay, it is primitive, made up of diffuse network of nerve cells and neurites in the body wall. CNS is absent, माने कोई सिस्टम नहीं है। and body में polyp medusa होता है। okay, that we have already discussed. now reproduction कैसा होगा, reproduction, okay, now reproduction in these animals, तो ये lower animals है। reproduction तो लिखिए both asexual and sexual reproduction is seen। ठीक है, तो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, now asexual reproduction is by budding। okay, asexual reproduction is by budding। ब्रैकेट में इसको हम लोग एक्सटर्नल बड्स कहेंगे, एक्सटर्नल बड्स। ओके, it occurs in favorable seasons। जब मौसम सुहाना होता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपका एक्सटर्नल बडिंग करते हैं। फाइन, it occurs in favorable seasons। the external bud falls off from the the external bud falls off from the body and regenerates into an organism। ओके, तो ये आपके फेवरेबल सीजन में होगा। आप याद रखेंगे बडिंग फेवरेबल सीजन में हो रहा है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हर समय सेम होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय syngamy। What is syngamy? Fusion of gametes। Okay, in these animals the gonads may be ectodermal or endodermal। है कि नहीं? तो ये जो गोनाड्स है किसी किसी में एक्टोडर्मल होता है एंड किसी किसी में एंडोडर्मल होता है। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब है बाहर होगा या अंदर होगा। ठीक है जी। नाउ फर्टिलाइजेशन भी उसी तरह से, फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल इन सी वाटर और इंटरनल इन सन। तो जिसमें एंडोडर्मल गोनाड्स होगा उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, डेवलपमेंट
is indirect, okay, via a ciliated planula larva, okay, via a ciliated planula larva. तो समझ रहे हो, तो इसका जो लार्वा है उसको हम प्लान्यूला लार्वा कहते हैं. Okay, so this is something about the reproduction. I will show you a beautiful photograph. तो उससे आपको पता चलेगा इसका रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है. Okay. Now I will share this screen. Are you able to see this screen? All of you? Yes, sir. So screen में आप देख रहे हैं actually here you are seeing the life cycle of Obelia. Okay? Actually इसमें अलग अलग तरीके के जानवर हैं. ये क्लास कट जाएगा फिर we will rejoin for 15 minutes. Okay? तो इसीलिए मैं आपको लाइफ साइकिल दिखा रहा हूँ. तो ये एक्चुअली है लाइफ साइकिल. तो दिस ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? ओबेलिया. लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया. ना ओबेलिया बिलोंग्स टू हाइड्रोजोआ. तो हाइड्रोजोआ इसमें पॉलिप स्टेज भी है एंड मेड्यूसा स्टेज भी है. Right? So that is why ये आप लाइफ साइकिल देख रहे हो. तो दिस इज द पॉलिप स्टेज एक्चुअली. ये जो आप प्लांट जैसा देख रहे हो, दिस प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, दिस प्लांट लाइक ओबेलिया, इसमें आपके अलग अलग क्या बच्चे हैं. तो ये जो आप देख रहे हो दिस फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं क्या? This is called hydran.